Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, Code Movement Pakistan. Welcome to another episode of Code Movement Pakistan Weekly Jam. तो आज हम अपनी जो पावर बीआई की जर्नी थी वो कंटिन्यू करेंगे एंड वी हैव टुडे विद अस Zunerah Shah from Karachi. Assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum. I'm fine. How are you? I'm good, thank you. तो आज क्या सिखाने जा रही हैं? Acha. So let's start with the Power BI. Previously, I have covered the data visualization in Power BI, and in today's session, I'll be covering the DAX, data modeling, and the row level security in Power BI. Okay, So, yep, ready? yep, I'm ready. Let's do it. All right. So, hello everyone. Let's start with the understanding of DAX and Power BI. Before moving towards DAX, I will be covering the shaping of data or the data modeling in Power BI. In the previous session, I have already covered the data visualization. How do we perform the visualizations on the Power BI? And obviously, I have gone through the data transformation using Power Query Editor. In this session, I'll be covering the shaping of table. How do we shape the table? How do we create a model before creating the visualization? So let's start with the shaping table in Power BI. Okay, so basically, we usually create the data models. Why do we do that? Because Power BI is optimized to use the data model that is called the Kimball model or the dimensional model, where we use the fact and the dimension tables. Now, for this, we need to perform the normalization. Database normalization is basically a set of rules and the processes for data modeling. It basically organizes your database, right? And the basic goal of normalization is to reduce the data redundancy. Data redundancy क्या होती है? जहाँ पे let's suppose it basically shrinks the file sizes and avoid the data inconsistency. डेटा रिडंडेंसी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो लेट्स सपोज अगर एक टेबल में हमारे पास सारा डेटा है, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे डेटा को। प्लस हमारा एक ये गोल होता है कि एक एक जैसा डेटा मल्टीपल टेबल्स में ना हो। आई मीन एवरी टेबल शुड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, सही है। तो इस तरह का हमें हमें एक तो टेबल्स को स्प्लिट करना होता है, प्लस रिपीटेटिव डेटा को भी रिमूव करना होता है। सो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इट वी कैन अचीव अ डिज़ाइन विच इज़ गुड फॉर रिप्रेजेंटेशन इन ऑफ अ रियल वर्ल्ड। और पावर बीआई में सारे टेबल्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू द रिलेशनशिप्स। अगेन दैट रिलेशनशिप कैन बी मेड ऑन द फैक्ट्स एंड डायमेंशन कीज, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था। Now, let's move towards how do we shape the table. Power Query includes several data shaping operation to get closer to a normalized data model. फोर की टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ कॉलम्स। अगर हमारे पास एक टेबल है पूरा, उसमें एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और बहुत बड़ा वो कॉलम है, तो हम उस कॉलम को split कर सकते हैं using delimiter or any other criteria. Then we have extracting values from the column. एक कॉलम में अगेन बहुत सारा डेटा है और उसमें हमें सिर्फ उसकी आईडी चाहिए या उसका कोई भी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स चाहिए, तो हम उसमें से वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। we can query merging, we can do query merging and query appending. Query merging basically query यहाँ पे हम table को refer कर रहे हैं, तो we can merge the tables and we can append the tables. How do we do that? I'll show you. Query merging जो होता है वो basically a join operator in the SQL। जो join operator SQL में काम करता है ना, basically सारे tables को वो join कर देता है। तो वहाँ पे Power BI के अंदर query merging हम उसको कहते हैं, and union all जो है हम क्वेरी अपेंडिंग को कहते हैं। क्वेरी अपेंडिंग कह रहे हैं या टेबल को अपेंड्स करने वाली बात कर रहे हैं, सही है। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक ट्यूटोरियल कि हम ये कैसे करेंगे। लेट मी गो बैक टू द शेपिंग टेबल्स। Okay, so here I have only one data, मैन्युफैक्चरिंग डेटा। इन द प्रीवियस सेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि डेटा हम लोड किस तरह करते हैं, right? You can get the CSVs. We have multiple data types, data sources. तो मेरे पास अभी ये एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। इफ़ आई गो बैक टू दिस वन, यहाँ पे हमारे पास इसकी आईडी है, जोग्राफिक नेम है और NAICS कोड है, इंडस्ट्री ग्रुप एंड सो ऑन, राइट।
नाउ लेट्स सपोज हमें अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट आई है कि हमें उन्होंने एक टेबल दे दिया, ठीक है। हमारे पास इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली वी नीड टू स्प्लिट इट। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। लेट्स सपोज हमें इसमें से जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिख रही है और हमें जो लग रहा है कि हम लेट्स सपोज 27 NAICS कोड है और मीनिंग ऑफ NAICS कोड है, हम इन दोनों को किसी और टेबल में रख सकते हैं, राइट। हम उनका एक अलग से टेबल बना सकते हैं, दैट वी कैन कॉल अ डायमेंशन टेबल। तो हम क्या करेंगे, firstly we are going to open it in the power query editor। राइट क्लिक करके हमने इसको एडिट क्वेरी किया तो वो वाला टेबल अब पावर क्वेरी एडिटर पे ओपन हुई है। अब ये वाला टेबल, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट टेबल बना लेंगे एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज अ NAICS, राइट। नाउ वी वांट के इतना सारा डेटा हमें रखना नहीं है, ऑब्वियसली NAICS कोड्स हैं तो हम इसमें सिर्फ इस कोड को रखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी मीनिंग है हम उसको रखेंगे। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फर्स्ट कॉलम एंड द मीनिंग ऑफ द NAICS कोड एंड रिमूव अदर कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक डेटा को, डेटा में से सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस किया एक तरह से, ठीक है। नाउ रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव कर देंगे जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी इन कोड्स में से वो रिमूव हो चुकी हैं। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने टेबल बनाया, इस तरह हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। मैं अभी यहाँ पे आगे जाके इंडस्ट्री ग्रुप्स को भी अलग करूँगी, मैं जोग्राफिकल लोकेशंस को भी अलग कर दूँगी। अगेन हम एक बहुत सारे एक बड़े से टेबल में से छोटे छोटे टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको डायमेंशंस बना सकते हैं। देन वी कैन रिलेट इट टू द फैक्ट टेबल जो कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सही है। अच्छा, अच्छा अब हमने NACS कोड, मीनिंग ऑफ NACS कोड है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ नो यूज़। इसको हम रिमूव कर देते हैं, बट वी हैव टू कीप द NACS कोड टू लिंक मैन्युफैक्चरिंग डेटा इन NACS टेबल, ठीक है। ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करके इसको बंद कर सकते हैं। Now it Zunair, will give me, yeah. Zunair, there is a small hide button on that pop-up जो आपको नजर आ रहा है ना, स्ट्रीम यार्ड का छोटा सा, जस्ट क्लिक ऑन राइट पे। Okay. अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द, अच्छा अगर हम इसका डेटा मॉडल देखें तो वी कैन सी के मैन्युफैक्चरिंग डेटा टेबल इज नाउ एसोसिएटेड विद द NACS कोड यूजिंग द NACS कोड कॉलम नेम। लाइकवाइज इस तरह के हम बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री ग्रुप का बना सकते हैं, जोग्राफिकल नेम का बना सकते हैं, और उनमें से उनकी सिर्फ कीज़ वैल्यू को रख के उनके जो नेम है या उनके जो रीजन्स हैं उनको अलग कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट द डायमेंशन एज वेल। नाउ लेट्स सपोज हमें इसी टेबल को, मैन्युफैक्चरिंग डेटा को थोड़ा और स्प्लिट करना है या इनके कॉलम्स स्प्लिट करना है, ठीक है। सो वी कैन गो बैक टू दिस डेटा व्यू में हम जाके देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेटा में हमारे पास रेंजेस हैं, सही है। रेंज इंडिकेटिंग द परसेंटेज एनुअल एम्प्लॉयज इम्प्यूटेड एंड द पेरोल इम्प्यूटेड। नाउ वी हैव दिस रेंज। इसी तरह के बहुत सारे डेटा आता है हमारे पास, एक कॉलम में मल्टीपल चीज़ें होती हैं या मल्टीपल कॉलम से हमें एक चीज़ बनानी होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेंजेस हैं, कुछ हाई एंड द लो वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे, इनमें से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इनटू मल्टीपल कॉलम्स, 2 कॉलम्स में हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, we'll go back to the Power Query editor. We are going to duplicate the last column 2 times. One is for the low range and another for the high range. Once this is done, अच्छा, now we can go to the transform tab। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कॉलम पे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं। हमें क्या करना है कि लोअर रेंज को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 30%, 40%, 0%, 60% एंड सो ऑन। और फॉर दिस कॉलम वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। 40% 40% जो प्रीसीडिंग वै
टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर के लिए हम ये कर देंगे और यहाँ पे डेलीमीटर डिफाइन कर देंगे कि क्या डेलीमीटर है जिससे पहले की हमें वैल्यू चाहिए, दैट इज परसेंटेज साइन। सो वी गेट द 30। अच्छा, यहाँ से डेटा टाइप भी चेंज हो सकती है, तो ये अभी ABC ये होल होल नंबर पे हुआ है, इसको होल नंबर पे कर देते हैं हम, बिकॉज दिस इज द नंबर, और इसको रीनेम भी कर देते हैं लो रेंज एम्प्लॉयज के नाम से। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर द हाई रेंज एम्प्लॉयज। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दी लास्ट करेक्टर्स, इसके कुछ लास्ट के करेक्टर्स हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें इसकी हाईएस्ट रेंज पता चल जाएगी, एंड वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर which is percentage, change the data type, rename the column. Okay, so that's how we split the column, right? अब हम क्यों करते हैं, वी हैव मल्टीपल रीजंस। अगर हमें कोई विजुअलाइजेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अ हाई टू लो रेंज, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, तो डेफिनेटली उस डेटा में से इन शॉर्ट हम मल्टीपल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, now let's go back towards this thing. अच्छा, लेट्स सपोज अगर हमें इसमें से कोई भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, वी कैन डू दैट टू। हमने यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉल बार चार्ट ले लिया, राइट? यहाँ से हमने हाई रेंज एम्प्लॉयज़ ले लिए, और एयर ले लिया। एयर पे हम हाई रेंज एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं, एंड सो ऑन। एयर पे हायरार्की क्रिएट हुई भी है, तो हम इसको ड्रिल डाउन ड्रिल अप कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सही है, वी आर गोइंग बैक टू बाय एयर एंड क्वार्टर, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। ठीक है, इसके बाद है कॉलम एक्सट्रैक्शन। हमने देख ली कि कॉलम को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। हाई वैल्यूज़ हाई एम्प्लॉयज़ को लेके हम उनकी पेरोल पे भी देख सकते हैं कि पेरोल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उनकी रेंजेस भी देख सकते हैं। अगेन दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि हमारे पास रिक्वायरमेंट किस तरह की आई है। नाउ गो बैक, लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेटा मॉडलिंग। जैसे मैं बता रही थी कि हम एक फैक्ट टेबल से मल्टीपल डायमेंशन टेबल बना सकते हैं और उनको लिंक कर सकते हैं टू द फैक्ट टेबल, राइट? तो लेट्स डू दैट वन। मेरे पास यहाँ पे एक और दूसरा टेबल है विच इज़ कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। अगेन ये मेरे पास सारी CSV फाइल्स नहीं, तो मैंने उनको ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है। लोड मैंने करना पहले सिखाया था कि हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड लोड द डेटा इनटू पावर BI। अच्छा, नाउ वी हैव दिस एस्टैब्लिशमेंट सर्वे। अगर हम इसका डेटा देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये डेटा आता है, और ऑब्वियसली इतने सारे डेटा पे विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होगी, या हमें डेफिनेटली इसका कोई एक मॉडल बनाना है फॉर पावर BI विजुअलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव द ID, वी हैव द एज कोड, वी हैव NACI's कोड अगेन, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि फैक्ट टेबल में होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द कोड डिस्क्रिप्शन विच शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ फैक्ट टेबल, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। इंडस्ट्री कोड को भी हम अलग कर सकते हैं, कोड इसमें रहेगा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है हम उसको अलग कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सही है, तो फर्स्टली लेट्स गो बैक टू द पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, यहाँ पे वी कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट दिस टेबल, एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज ई इंडस्ट्री। ठीक है, इसको हम इंडस्ट्री नाम दे देते हैं, इंडस्ट्री। अच्छा, अब इस इंडस्ट्री में क्या क्या कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड। NACI कोड को रख लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन को रख लेते हैं,
which is code description और industry group, code, subsector, sector code in the sector. इन सबको रख के we are going to remove the other column, remove other columns. ठीक है, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया अदर कॉलम्स और यहाँ से हम थोड़े बहुत डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर देंगे. ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर दिए. सो यू नो हमारे पास पहले कितना सारा डेटा था जो कि अब काफ़ी श्रिंक होके हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करके एक डायमेंशन टेबल में डाल दिया, राइट. एंड इफ़ यू गो बैक टू द एस्टेब्लिशमेंट सर्वे टेबल, यहाँ पे अब ऑब्वियसली जब ये डेटा हमारे पास यहाँ पे है तो हम उन कॉलम्स को वहाँ क्यों रखें. वी आर गोइंग टू रिमूव दोज कॉलम फ्रॉम दिस टेबल except for the code ID because that will be useful for making the relationship between these two tables. From this to this, we are going to remove these columns. ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया, राइट. नाउ वी विल गो बैक टू दी पावर बी आई. वहाँ हम जाके देख लेते हैं कि इन दोनों का रिलेशन बना भी है कि नहीं बना. सही है, क्लोज एंड अप्लाई. Let's go to the model view. Model view पे we can see कि establishment survey is being linked with the industry table using NACI's code. ठीक है, इसने पावर बी आई ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेशन बना दिया बिटवीन दीज टू. अब हमें अगर कोई ग्राफ बनाना है वी कैन सिलेक्ट दी कॉलम क्लस्टर चार्ट या क्लस्टर बार चार्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी एनालिसिस हमें परफॉर्म करनी है हम वो कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सेक्टर की एनालिसिस की है यूजिंग दी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. इस तरह की हम एनालिसिस कोई भी परफॉर्म करनी होती है हम वो कर सकते हैं, राइट. सेक्टर कोड को भी हम ले सकते हैं इधर. ठीक है, so this is the visualization. अच्छा, we can create more of them. अगर हम establishment survey पे जाके देखते हैं यहाँ पे we know कि एक year का भी कॉलम है और एक एज कोड का भी कॉलम है. ठीक है, अब ईयर और एज कोड को भी हम अगेन यहाँ से अलग कर सकते हैं या हम इसको लिंक कर सकते हैं टू अदर डायमेंशन टेबल्स. वो हम कैसे करेंगे. अगेन वी आर गोइंग टू लोड अ डेटा. एज कोड. सही है, ये आ गया हमारे पास एयर का डेटा. And we can load another data which is the establishment age. So this is the age code. ये वाला age code जो है वो यहाँ पे इस वाले age code से लिंक हो रहा होगा और यहाँ पे जो टाइम पे एयर है वो इस वाले टेबल के एयर से लिंक हो रहा होगा, राइट. अगेन इस पे अगर कोई परफॉर्मेंस हमें कुछ भी कोई भी डेटा रिमूव करना है या कोई भी कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम पावर क्वेरी एडिटर पे रह के कर सकते हैं. लेट्स क्लोज एंड अप्लाई. एंड वी कैन सी ये डेटा मॉडल है. यहाँ डेटा मॉडल पे वी कैन सी कि वी हैव एस्टेब्लिशमेंट सर्वे जिस पे हमने इंडस्ट्री को अलग किया था और उसको हमने लिंक किया हुआ है यूजिंग NACI को. लेट मी जूम इन.
NACS कोड से हमने लिंक किया हुआ है. देन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट एज. अगेन दिस इज नॉट बीइंग लिंक्ड. इसको हम कैसे करेंगे कि एज कोड से एज कोड को लिंक कर देंगे. या मैनी टू मैनी का रिलेशन बनेगा ये. नाउ वी हैव द टाइम. टाइम को हमने कैसे लिंक किया हुआ है? यूजिंग एयर. एयर को एयर से हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है. दिस इज ऑल बीइंग डन बाय द पावर BI. So that's how we create the data models. अगेन अगर बहुत सारा डेटा आता है तो हम इसको, अच्छा, इफ़ यू कैन सी इंडस्ट्री पे हमारे पास इंडस्ट्री ग्रुप और इंडस्ट्री कोड भी है. एन एस सी आई कोड डिस्क्रिप्शन भी है. सेक्टर एंड सेक्टर कोड भी है. सब सेक्टर कोड भी है. वी कैन even split the इंडस्ट्री टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स, और वहाँ से हम इसकी हायरार्की भी क्रिएट कर सकते हैं. तो वो जो हायरार्किकल डेटा होता है बेसिकली हम उसको स्नोफ्लेक स्कीमा कहते हैं. स्टार स्कीमा में क्या होता है कि एक फैक्ट टेबल होता है विच इज़ इन द मिडल, और उसके सराउंडिंग्स में हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होते हैं. ठीक है. स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है कि वी हैव वन फैक्ट टेबल, मल्टीपल डायमेंशन टेबल उससे लिंक होते हैं, बट वन डायमेंशन टेबल इज लिंक टू एन अनदर डायमेंशन टेबल. स्टार स्कीमा में ऐसा नहीं होता. तो वो जो एक डायमेंशन टेबल है अगर वो मल्टीपल से लिंक हो रहा है तो वहाँ पे वो एक हायरार्की क्रिएट कर रहा होगा, राइट. तो उस तरह की हम हायरार्की यहाँ इंडस्ट्री वाले टेबल से भी बना सकते हैं. और बनाएंगे हम किस तरह? उसी तरह पावर क्वेरी एडिटर पे जाके क्रिएट अ न्यू कॉलम, क्रिएट अ न्यू टेबल, और इन सबको स्प्लिट कर देंगे और इन सबको लिंक कर देंगे यूजिंग इट्स कोड आईडीज. ठीक है. ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, तभी मैंने अभी परफॉर्म करके नहीं दिखाया, बिकॉज आई वांट to show how do we calculate and how do we perform the DAX expressions. So let's move towards the DAX first. Now, what is DAX? So basically, DAX stands for the data analysis expression. Again, this is the formula language used in only in the Power BI that provides the ability to create column, tables, and measures. कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं यूजिंग अ डेक्स एक्सप्रेशन, डेट टेबल बना सकते हैं हम मेजर्स बना सकते हैं. I'll show you how. Based on Excel formulas and function, basically जो simple से formulas होते हैं हमारे पास, sum का, average का, count का, इस तरह time intelligent functions होते हैं. We have multiple of functions that is being used in the DAX. ठीक है. DAX is more powerful than just a Power BI because it is being used in the Microsoft other Microsoft tools like SSAS and Power Pivot, etc. DEX function are basically predefined functions that perform calculation on a specific values called arguments. Some can, let's suppose we have 200 plus DEX functions that fall into several categories like aggregation. Aggregation के कुछ ये functions हैं, we have more of them. Some के अंदर जो भी हम value देंगे that is called the argument. Likewise for the count and average, we have date and time function, we have logical if and or, we have text function and so on. इसके वाले functions हम देख सकते हैं using this. ये माइक्रोसॉफ्ट पेज पे हमारे पास वी हैव अ बल्क ऑफ फंक्शंस, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं कुछ. ऑब्वियसली सारे यूज़ नहीं होते हमारी एनालिसिस पे, बट दिस कैन बी हेल्पफुल. लॉजिकल एंड इफ कैसे यूज़ करेंगे इन सब की डिस्क्रिप्शन है. We have the count, we have the average, we have the count x function, we have the maximum function and so on. ठीक है. So this is the reference of DEX, and let's suppose DEX function की example है. We have the sum function, we have the left function. Sum में हम कोई भी column name डालते हैं, we are going to get the summation of all these column numbers. और इसी तरह left का एक function है, इसका syntax इन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी text या string देते हैं उसके characters को ही extract करके ले आता है. Now moving forward, we have the calculated columns. Calculated columns क्या होते हैं basically? Calculated column enable us to expand our existing data sets without editing the source data, right? तो let's suppose हमने अगर कोई टेबल को लोड किया है अपने पास इन पावर BI, हम उस टेबल को
टेबल पे हम अपनी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। वो कैसे करेंगे कि अगर एक पूरा टेबल है, उसकी रॉ वाइज अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम दैट इज कॉल्ड द कैलकुलेटेड कॉलम, और उस कैलकुलेटेड कॉलम में हम एक डिक्स एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एंड वी विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी शो हुई हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमने डेटा लोड किया है उस पे हम जाके एक न्यू कॉलम का एक ऑप्शन होता है, न्यू कॉलम ऐड कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन कि प्राइस विद टेक्स्ट पे हमें क्या करना है कि प्राइस को ऐड करना है विद प्राइस मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट। तो वो हर रो के लिए कंप्यूट हो जाएगा, राइट। मेजर्स में ये नहीं होता। मेजर में वो रो वाइज कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है, बेसिकली वो कॉलम वाइज कैलकुलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम इवेलुएट्स एट द रो लेवल जैसे मैंने बताया, एंड देयरफॉर एड्स अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो भी हम डेटा लोड करेंगे उसमें ये हम कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एनी कॉलम दैट इज क्रिएटेड इज कैलकुलेटेड एट द डेटा लोड और व्हेन द डेटा इज रिफ्रेश्ड। हम अगर वो बार बार डेटा रिफ्रेश करेंगे उस पे इनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती रहेगी बेस्ड ऑन द डेक्स एग्जांपल या डेक्स एक्सप्रेशन। Likewise, we have the calculated majors. Calculated majors basically enable you to create a complex calculation that can be used on your data. मैं अभी दिखाऊंगी कि हमें लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल पे सेल्स डेटा दिया हुआ है अब, और उससे हमें प्रॉफिट निकालना है या उससे हमें कोई रेशो निकालना है या सो ऑन, इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन होगी तो वो हम मेजर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली enable you to create the complex calculation, aggregate multiple rows and add a new field that can be added to the visualization. मेजर itself कोई टेबल नहीं होता, बट मेजर में मैं बता सकती हूँ कि मेजर मल्टी दूसरे टेबल्स की चीज़ों को evaluate कर रहा होता है एंड देन वी कैन यूज दोज मेजर्स। ठीक है, कॉलम्स में क्या होता है, कॉलम्स बेसिकली फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टेबल्स में जाके देखेंगे तो हमें नजर भी आएगी कि कैलकुलेटेड कॉलम्स हमने कैसे बनाए हुए हैं। Now the measure itself is calculated at the query time rather than when the data is loaded. Measures बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो डेक्स एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम, डेक्स फार्मूला लिख सकते हैं, और यूजिंग पावर बी आई क्विक मेजर बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे बिल्ड पावर बी आई के अंदर बिल्ट इन ऑप्शन है क्विक मेजर का, जिसको यूज़ करते हुए हम क्विक मेजर्स बना सकते हैं। ये बेसिकली ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर evaluation के लिए quick measures हम बनाते हैं। Quick measures are the features in DAX that allow you to create the complex DAX function using a drag drop interference. कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। So that's about the DAX. Basically, this is the difference between the calculated columns and the calculated measures. Calculated column evaluate for each row and calculated measures for aggregating multiple rows. We can add a new column to an existing table. For the major result in another field that you can add to the visualization and so on. यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो वी हैव द आइटम प्राइस इन द टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे प्राइस विद टेक्स्ट ये वाला जो कॉलम है दैट इज़ द कैलकुलेटेड वंस, जहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लगाया था जो हमने पीछे देखा था, दिस फॉर्मूला। ठीक है, और इसी तरह हमें अगर एक मेजर बनाना है तो मेजर हम यहाँ पे जाके लिख देंगे और वहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ ऑल दी, मतलब इस वाले कॉलम की जितनी वैल्यूज़ हैं दैट इज़ गोइंग टू बी सम्ड अप फॉर दिस मेजर। ठीक है, now let's move towards the quick measures. अच्छा, अच्छा, I'm going to open a new tab.
Okay, so we have the two existing datas. That is, first one is the calculation. These are the majors, and we have the actual data, that is the sales data. अगर data view में जाके देखते हैं तो we have the sales data. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास multiple चीज़ें हैं. We have line cost, we have line price. अगर हमें यहाँ से profit निकालना है, we can create a profit. We can create a new column जहाँ से हमारे पास प्रॉफिट पता चल जाए. अगेन प्रॉफिट हमें हर कैटेगरी का निकालना होगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करना होगा. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉलम. ये अभी हम पावर बी आई डेस्कटॉप इंटरफेस पे हैं एंड वी आर ऑन द डेटा इंटरफेस. यहाँ पे हम जाके न्यू कॉलम का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और इस बार पे हम अपनी डेक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे. ठीक है, अब बेसिकली ये कॉलम को नाम क्या देना है और इस पे किस तरह की कैलकुलेशन करनी है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दो सेम फार्मूलाज. हमें यहाँ पे अभी लेट्स सपोज अगर प्रॉफिट निकालना है तो वी आर गोइंग टू राइट द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लाइन प्राइस. सो दिस इज द लाइन प्राइस. मैंने सिर्फ लाइन लिखा है तो लाइन प्राइस आ गया. दिस इज इंडिकेटिंग कि सेल्स टेबल का जो लाइन प्राइस वाला कॉलम है वो माइनस लाइन कॉस्ट कर देंगे हम. ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ से प्रॉफिट पता चल जाएगा कि जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस है, उसकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसकी, उसमें से हम उसकी लाइन प्राइस को माइनस कर देंगे तो दैट वी आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट. ठीक है, अच्छा, वंस दिस इज डन यहाँ पे एक टिक मार्क आ रहा है. वी आर गोइंग टू क्लिक दिस वन और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ गया. ठीक है, अच्छा, अब अगर इस कॉलम के हमें डेटा टाइप चेंज करनी है, कैटेगराइजेशन चेंज करनी है, डेसिमल प्लेसेस चेंज करना है, तो वो इस वाले बार से हम कर सकते हैं. लेट्स सपोज उसका फॉर्मेट जनरल है, हम इसको होल नंबर या डेसिमल नंबर दे सकते हैं. ठीक है, और इसका नाम जो है वो यहाँ ऊपर से चेंज कर सकते हैं. डेसिमल नंबर की पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन. तो एक कॉलम के ऊपर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है वो हम इस वाले टैब से जाके कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव द प्रॉफिट नाउ. इफ़ आई गो बैक टू माय रिपोर्ट व्यू और यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, नहीं, कैलकुलेशंस में नहीं आएगा, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द सेल्स. ठीक है, तो सेल्स के अंदर हम देखते हैं तो वी हैव द प्रॉफिट. दिस इज़ द प्रॉफिट जो हमने अभी बनाया था. इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेक्स एक्सप्रेशन आ जाएगी कि बेसिकली ये बेस किस पे कर रहा है ये. ठीक है, इसी पे अगर हमें कोई अपनी विजुअलाइजेशन बनानी है तो वी कैन डू दैट टू. क्लस्टर बार चार्ट लेके हम ऑर्डर डेट कर लेते हैं और एक्स एक्सेस पे हम प्रॉफिट रख देते हैं. सो वी विल गेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट बाय ईयर आ गया ये. ठीक है, अगेन दिस इज़ द हायरार्की, तो हम इसको बाय क्वार्टर, बाय मंथ, बाय डेट पे देख सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम. अब मेरे पास तो अभी फॉर नाउ एक डेटा सैम्पल है, एक टेबल है, उसमें मैंने ये वाला कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया है. इट इज़ अगेन वेरी सिंपल कि हमें सिर्फ डेक्स एक्सप्रेशन लिखनी है अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग द मेजर्स. मेजर्स कैसे बनाते हैं? मेजर्स के लिए हमें, हमारे पास ये वाला टेबल है. मेजर्स के लिए हमने दूसरा टेबल यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ कैलकुलेशन. बेसिकली हम इसको हमेशा अंडरस्कोर से प्रेजेंट करते हैं ताकि मेजर्स हमारे पास फील्ड टेबल में सबसे ऊपर आए. तो यहाँ पे अभी ये हुआ हुआ नहीं है, बट वी यूजुअली यूज़ अंडरस्कोर. तो यहाँ पे वी हैव दिस कैलकुलेशन और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल सेल्स ऑलरेडी एक मेजर बना हुआ है. ठीक है, इफ़ आई गो बैक टू दी रिपोर्ट व्यू, सॉरी, डेटा व्यू, तो डेटा व्यू में कैलकुलेशंस के अंदर कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम्स में हमारे पास वो वाला टेबल ज़रूर आ रहा होता है. ठीक है, तो बेसिकली मेजर्स में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टोटल सेल्स के लिए समेशन परफॉर्म की हुई है ऑन द लाइन प्राइजेस. लाइन प्राइजेस जो मैंने अभी दिखाया था सेल्स टेबल में, तो उसका जितना सारा डेटा था उन सबको सम अप करके हमने एज अ टोटल सेल्स प्रेजेंट किया हुआ है. राइट, लेट्स क्रिएट एन अदर मेजर. सेल्स काउंट का हम मेजर बना लेते हैं.
बनाएंगे कैसे कि हमने कैलकुलेशंस पे क्लिक किया एंड वी क्रिएट अ न्यू मेजर। ऊपर जो एक बार में न्यू मेजर है इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे उस मेजर का हम नाम देंगे और यहाँ पे हम डेक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेट्स सपोज आई वांट टू नो द सेल्स काउंट। ठीक है, सेल्स काउंट हमें मालूम करना है तो हम डिस्टिंक्ट काउंट निकाल लेंगे। अच्छा, जैसे ही लिखेंगे कोई भी फंक्शन तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आ जाएंगे। लेट्स क्लिक ऑन वन ऑफ द फंक्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन द कॉलम। ठीक है, सो दिस इज सो सिंपल कि हमें इनफैक्ट उस रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं है, वी कैन ईजिली डू दिस बाय फ्रॉम हेयर। ठीक है, और हमें कॉलम नेम बताना है विच इज़ द सेल्स। नहीं, यहाँ पे ऑर्डर नंबर को हम देख सकते हैं। So this is the order number. We are going to, ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेशंस के अंदर देखें तो प्रीवियसली वी हैड सेल्स, टोटल सेल्स, और अब हमारे पास एक और मेजर आ गया है दैट इज सेल्स काउंट। सही है। इसी तरह हमने अगर इस पे हमने एक परफॉर्मेंस एनालिसिस की हुई है, एक विजुअलाइजेशन बनाई हुई है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट मैंने नहीं बनाया ना, टोटल सेल्स हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर यहाँ पे एक और चीज़ परफॉर्म करनी है, अगेन योर रिक्वायरमेंट। जैसे मेरे पास जो डेटा सेट था वहाँ पे कुछ इस तरह की एनालिसिस हुई हुई थी कि यहाँ पे पहले मैंने सेल्स बना लिया था, सेल्स काउंट बना लिया था, फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रेशियो लिखा था। तो प्रॉफिट रेशियो मार्जिन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द समेशन ऑफ द प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स। यस, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें एक नया मेजर बनाना होगा, राइट। So we are again going to go back in here, calculations पे जाएंगे। अच्छा, we have the profit, total profit is equals to sum of profit। सही है। We have the total sales, we have the total profit, we have the sales count। ये तीन मेजर्स बन चुके हैं जिस पे हमने सिंपली समेशन लगाया और कुछ नहीं किया। अगर हमें एक और मेजर बनाना है तो हम कैलकुलेशंस पे जाके न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और लाइक आई सेड कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकालना है। प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकालना है, हमने इस पे टाइप किया। दिस इज सिंपली द डिविजन ऑफ टोटल प्रॉफिट। दिस इज द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक और मेजर क्रिएट कर लिया। सही है। नाउ वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल ऑफ मेजर्स। अगेन मेजर्स बहुत मेजर्स में हम किसी भी तरह का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर सम यूज़ किया है, डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ किया है। एक और मैं मेजर बना के दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज सेल्स के डेटा पे हमारे पास, इफ़ आई गो बैक टू द सेल्स व्यू, सेल्स में हमारे पास सब कैटेगरीज हैं। यहाँ पे मल्टीपल टायर्स एंड ट्यूब्स हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे 60,000 रोज हैं। तो इसमें हमें लेट्स सपोज अगर बाइक्स का या कोई भी दूसरी सब कैटेगरी का रेवेन्यू चाहिए होता है, सो वी कैन अप्लाई दोज थिंग। अगर मैं यहाँ पे एक मेजर लिख के बताऊँ आप लोगों को, जहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ बाइक्स का रेवेन्यू चाहिए होगा इन द ईयर 2018। ठीक है, तो हम इस तरह की फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशन। सही है।
हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, अगर मैं इसी कैलकुलेशंस पे जाके फिर से एक नया मेजर बनाती हूँ, न्यू मेजर पे रख के, एंड आई एम गोइंग टू नेम इट एज 2018 बाइक्स रेवेन्यू। इस पे मैं यूज़ करूँगी, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए फॉर द बाइक्स ओनली और फॉर द ईयर ऑफ 2018। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट ले सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे विद इन द डेक्स फिल्टर्स भी अप्लाई करना है। मुझे वहाँ पे एक बाइक्स का फ़िल्टर भी लगाना होगा और ईयर पे मुझे वहाँ पे 2018 का भी फ़िल्टर लगाना होगा। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए जहाँ पे फिल्ट्रेशन भी यूज़ हो रही हो प्लस वहाँ पे समेशन भी हो रहा हो, वहाँ पे हम कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन कैलकुलेट पे हमें फर्स्ट पे एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन हम क्या देंगे, समेशन ऑफ लाइन प्राइस, यस, समेशन ऑफ लाइन प्राइस, एंड वी आर गोइंग टू राइट द फिल्टर नंबर 1। फिल्टर कौन सा होगा, दिस इज द दिस इज द प्रोडक्ट कैटेगरी। इस पे हम डिफाइन कर देंगे कि प्रोडक्ट कैटेगरी शुड बी बाइक्स। फिर हम कॉमन दे के फिल्टर नंबर 2 अप्लाई करेंगे, जो कि हम ईयर पे करेंगे, ऑर्डर डेट पे करेंगे। ओके, ऑर्डर डेट पे हमने 2018 का डेटा ले लिया, राइट। सो दिस मेजर इज गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ लाइन प्राइसेस फॉर द बाइक्स फॉर द ईयर ऑफ 2018, ठीक है। इस पे हमने इसको टिक मार्क कर दिया। So we have the new major created, that is 2018 bike revenue. Year sales, मुझे यहाँ पे year लिखना था। ठीक है, अगेन वी हैव ऑल दीज मेजर्स, सब मेजर्स के जो भी डेक्स एक्सप्रेशन है वो ऊपर लिखी हुई है। इसी तरह की मल्टीपल कॉम्प्लेक्स मेजर भी हो सकते हैं। लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू क्रिएट अ क्विक मेजर। क्विक मेजर एक कॉम्प्लेक्स मेजर होता है, जिसको सिंपली हम यहाँ से पावर बी आई, बेसिकली दो तरह के मेजर्स होते हैं, डेक्स मेजर होता है और एक क्विक मेजर होता है। क्विक मेजर अगेन फॉर एयर एनालिसिस के लिए यूज़ हुआ हुआ होता है। मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा है, मैं उस वहाँ से देख के बता सकती हूँ आपको। अच्छा, लेट मी फिनिश दिस मेजर्स। मेजर्स में अगेन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कॉलम पे जाके अगर मैंने कैलकुलेशन को क्लिक किया हुआ तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ऑल्दो वी हैव द सेल्स डेटा, वी हैव द कैलकुलेटेड कॉलम, दैट इज द प्रॉफिट, जहाँ पे हमारे पास डेक्स एक्सप्रेशन लिखी हुई है। मेजर्स में ऐसा कुछ नहीं है। मेजर्स को अगर हम क्लिक करेंगे तो वी विल गेट द डेक्स एक्सप्रेशन अबव, और उसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट को डाला हुआ है। इसी तरह हम बाइक्स का रेवेन्यू, इसको हटा के हम यहाँ पे बाइक्स का रेवेन्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बाइक्स का रेवेन्यू आ जाएगा। ये बाइक का रेवेन्यू जो था ये किसी भी टेबल में नहीं था, ये अभी हमने खुद बनाया है। तो फॉर दिस पर्पसेस वी यूज द मेजर्स, ठीक है। अच्छा, लेट मी शो यू द क्विक मेजर। अच्छा जी, क्विक मेजर्स में अगेन कुछ डेटा है ये ऑलरेडी, जो अभी हमने क्रिएट किया था, प्रॉफिट मेजर, बाइक रेवेन्यू एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास एक डेट का टेबल बना हुआ है ऑलरेडी। ये डेट का टेबल भी हमने खुद बनाया है यूजिंग द एक्स एक्सप्रेशन। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है फॉर द डेट्स, और हर कॉलम के लिए हमने सारी डेट्स एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डेट टेबल, और हर टेबल पे एक, सॉरी, इस टेबल पे सारे जो हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स अटैच हुए हुए हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स मींस मतलब वो सारे कॉलम्स हमने डेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे ईयर ओवर ईयर या क्वार्टर ओवर क्वार्टर एनालिसिस करनी है, तो आई विल गो टू द क्विक मेजर्स। मैं यहाँ पे क्विक मेजर पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे कैलकुलेशंस पे वी हैव फ्यू सब कैटेगरीज के एग्रीगेट पर कैटेगरी, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैंने कभी एग्रीगेशन या फिल्टर्स पे काम नहीं किया है। आई यूज़ द टाइम इंटेलिजेंस। तो लेट्स सपोज अगर मैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर चेंज देखना चाह रही हूँ किसी भी चीज़ का, सेल्स का या
कोई भी प्रोडक्ट का, तो मैं वहाँ पे क्वार्टर ओवर क्वार्टर या ईयर ओवर ईयर चेंज के लिए क्विक मेजर यूज़ करूँगी। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हमें ऐड करनी है। फर्स्ट वन इज द बेस वैल्यू एंड सेकेंड वन इज द डेट। ऑब्वियसली हमें डेट डिफाइन करनी होगी कि हमें कहाँ से कहाँ तक का चेंज डिफाइन करना है। ठीक है, तो बेस वैल्यू में मैं क्या डालूंगी, डेट्स पे जाके हम डेट डाल देंगे। बेस वैल्यू में आई एम गोइंग टू ऐड द टोटल सेल्स। अच्छा, इफ़ आई क्लिक, हाँ अच्छा, ये जो है टोटल सेल्स क्वार्टर ओवर क्वार्टर परसेंटेज, बेसिकली दिस इज़ योर क्विक मेजर जो पावर बीआई ने खुद क्रिएट किया है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन, तो इसको इतना सब कुछ राइट करने के बजाय हम क्विक मेजर पे जाके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से क्विक मेजर बना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो हम हमारे लिए करना मुश्किल भी होता है, तो वी वुड प्रेफर कि हम इससे अच्छा क्विक मेजर को यूज़ कर लें। ठीक है, अगेन क्विक मेजर को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन बनी हुई है विच इज़ टोटल सेल्स क्वार्टर ओवर क्वार्टर एंड टोटल सेल्स बाय क्वार्टर एंड ईयर। अगेन दिस इज़ द हायरार्किकल व्यू, तो हम इसकी हायरार्की इनेबल करके इसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द क्विक मेजर्स। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास सेल्स है, हमारे पास एक डेट का टेबल भी है और हमें उस पर विजुअलाइजेशन, हमें उस पर क्विक मेजर्स बनाने हैं, ईयर ओवर ईयर चेंज रिप्रेजेंट करना है या क्वार्टर ओवर क्वार्टर करना है, तो हम इस तरह से यूज़ क्विक मेजर्स को यूज़ करते ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर्स एंड द क्विक मेजर्स। जुनैरा, इसको रैप अप करें, एक दो क्वेश्चंस भी होंगे फिर लास्ट में। श्योर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे बस एक आरएलएस श्योर। बताना है, मैं फिर ओके उसके बाद ओके। आप करती हूँ। ठीक है। ऑलराइट। Acha, basically, let me quickly go towards the RLS. What is RLS? Role level security. Role level security हम अपने डैशबोर्ड पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑलरेडी डैशबोर्ड बना हुआ था। ठीक है, सो दिस इज़ द सैम्पल डेटा, और यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं चाह रही हूँ मैं अपने डैशबोर्ड को स्पेसिफाइड लोगों से दिखाऊं। ठीक है, मैं नहीं चाह रही कि मैं सबको दिखाऊं वाली चीज़, तो डिपेंड्स ऑन विच यूज़र इज़ बीइंग लॉग्ड इन, उसको उस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर सेल्स पर्सन हमारे पास ये मल्टीपल्स हैं, तो इनमें से अगर लिली कोड अगर लॉग इन करती हैं तो उनको किस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा, दैट आई विल शो यू। ठीक है, वो कैसे होगा, लेट मी गो बैक टू दिस वन। अच्छा, मैं परफॉर्म करके नहीं दिखा रही। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे रो लेवल सिक्योरिटी पे, कि बेसिकली यूज़ केसेस मैंने बता दिए हैं कि अगर हमें उस डैशबोर्ड को स्पेसिफिक यूजर्स को दिखाना होता है तो हम रो लेवल सिक्योरिटी परफॉर्म करते हैं ऑन आर एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और यूज़र हम बेसिकली करते ही वो रो लेवल सिक्योरिटी है यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, हम डेक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे विच यूजेस द यूज़र प्रिंसिपल नेम। ये यूज़र प्रिंसिपल नेम से हमारे पास जो है वो एक ईमेल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, और उस ईमेल से जो भी सेल्स पर्सन या जो भी पर्सन XYZ यूजर लॉग इन करेगा, पावर बी आई इज गोइंग टू शो दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट पर्टिकुलर डैशबोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेम या देयर ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वाला डेटा है RLS पे, और यहाँ पे एम्प्लॉय पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज दी हुई है, हम क्विकली यहाँ पे ना एक टेबल सॉरी कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस आ जाए, बिकॉज राइट नाउ अभी हमारे पास कोई ईमेल नहीं है और हमें ईमेल पे ही डेक्स को लिखना है। तो ईमेल पे चल के हम लोअर सब्स्टिट्यूट करेंगे एम्प्लॉय को, स्पेस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे, एंड wwi.com।
सही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड कॉलम बना लिया विच इज़ टेकिंग द एम्प्लॉयज़ नेम, और हमने वहाँ पे एक पोस्ट फिक्स ऐड कर दिया @wwi.com। ठीक है। अब ये ईमेल बनाने के बाद वी विल गो टू द मैनेज रोल, सॉरी मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में जाके ऊपर एक ऑप्शन होता है मैनेज रोल्स का। यहाँ पे हम जाके रोल डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से पर्सन को हमें क्या दिखाना है। लेट्स सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास जो ये डैशबोर्ड है, वेट अ सेकेंड, हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को दिखे जो कि सेल्स पर्सन है। ठीक है, जो जिसके आगे सेल्स पर्सन इज ट्रू है। तो मैं क्या करूँगी, मैनेज रोल पे गई, मैंने यहाँ पे एक नया रोल डिफाइन किया विच इज़ द सेल्स पर्सन, और एम्प्लॉय अगेन ईमेल कहाँ पे डिफाइन हुई हुई थी, डिम एम्प्लॉय के टेबल पे। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर ऐड किया और सबसे पहले ये देखा कि इस सेल्स पर्सन शुड बी इक्वल टू ट्रू, एंड ईमेल जो है उसमें हम यूज़र प्रिंसिपल, यूज़र प्रिंसिपल नेम है ना, यूज़र प्रिंसिपल नेम लगा देंगे। बेसिकली दिस ये जो फंक्शन है ना ये उस ईमेल को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ईमेल आईडी लॉगिन हुई है, कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। एक तो वो ये चेक करेगा, दूसरी चीज़ वो ये चेक करेगा कि अगर वो वाला पर्सन सेल्स पर्सन है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने अगेन डेक्स एक्सप्रेशन लिखी है, राइट। इसको हम सेव कर देंगे और हम अपने डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नो यूज़र करंटली लॉग्ड इन। अगर हमें इसको एज अ लिली कोड देखना है, लिली डॉट कोड एट www.wwi.com विच इज़ द सेल्स पर्सन, तो इसके लिए हमें डैशबोर्ड नज़र आना चाहिए, राइट। तो वी विल गो टू दी व्यू एस पे जाएंगे। व्यू एस पे जाके हम lily.code@wwi.com लिखेंगे। नाउ वी आर व्यूइंग दिस डैशबोर्ड एज अ लिली सेल्स डैशबोर्ड। तो सारे डैशबोर्ड जो होंगे वो एज पर द लिली के नाम से चेंज हो जाएंगे, सिर्फ लिली का जो डेटा होगा वो हमें नज़र आ रहा होगा। सही है। तो लेट्स सपोज अगर वो अपनी आईडी से लॉगिन होती हैं तो उनको सिर्फ ये वाला सेल्स डेटा नज़र आ रहा होगा, ना कि उनको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सो बेसिकली दैट्स वाई वी अप्लाई द रो लेवल सिक्योरिटी। ठीक है। अगर किसी मैनेजर को देखना है तो डेफिनेटली मैनेजर अपनी आईडी से लॉगिन होगा, उसके आगे सेल्स पर्सन का येस और नो नहीं हुआ होगा तो वो सारे सबका डेटा देख सकता होगा। और अगर कोई सिर्फ सेल्स पर्सन लॉगिन हो रहा है तो सिर्फ उसको अपना डेटा नजर आएगा। तो बेसिकली वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द डेटा विजुअलाइजेशन, कि हम नहीं चाह रहे कि सारा डेटा जो है वो हर यूजर एक्सेस कर पाए। सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई द रो लेवल सिक्योरिटी यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशन। So that's all about the data modeling, row level security, and the DEX basis. So, should we take questions now? Yes. Okay, I'll pull up questions one by one on your screen. Okay. So can you explain many to many relationship between tables? ठीक है। अच्छा, basically many to many relationship, we have one to many relationship, we have many to one relationship, and we have many to many relationship. अगेन इसको डिफाइन करना है। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास कोई डेटा खुला हुआ हो, अच्छा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अगेन हम यहाँ पे पावर बीआई पे ना, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली आपको चीज़ दिखाऊं प्रॉपर्टीज़ पे जाके, सो वी कैन डिफाइन द कार्डिनैलिटी। वन टू मैनी का रिलेशन भी हो सकता है, मैनी टू मैनी का भी रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन डिफाइनिंग कि इंडस्ट्री को हम किस तरह से लिंक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट सर्वे से, कि हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री ग्रुप का जो है वो एन सी आई कोड यहाँ पर हो, या एन सी आई कोड का जो
कोड हो वो यहाँ पर हो. तो बेसिकली दोनों में बेसिकली क्रॉस फंक्शनल कार्डिनैलिटी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्रॉस फंक्शनल डायरेक्शन होता है. आई थिंक सो. आई कैन इवन एक्सप्लेन यू बेटर. ये चीज़ आप मुझे प्राइवेटली पिंग भी करेंगे तो आई कैन एक्सप्लेन यू, बट आई गेस सो. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यही होता है बेसिकली. क्रॉस फंक्शनैलिटी हम डिफाइन कर रहे होते हैं बिटवीन द टू टेबल्स. यस, थैंक यू. वो एक्चुअली जब ये टेबल नॉर्मलाइज हो जाएंगे ना और एसोसिएट टेबल आ जाएगा तो वो डेफिनेटली इस मैनी टू वन के थ्रू ही हो जाएंगे. वुडंट बी अ प्रॉब्लम. अच्छा, कैन यू सी नेक्स्ट? Column using DAX like left and then why we didn't power query. If we can split column using DAX like left, then why we didn't power query. I didn't get the question. बेसिकली अगर हमें कॉलम को स्प्लिट करना होता है वो हम पावर क्वेरी में ही करते हैं. हम मैंने जैसे दिखाया था, हम क्वेरी एडिटर पे जाके, लेट्स सपोज अगर मैं इसको क्वेरी एडिटर पे ओपन करती हूँ तो यहाँ से ही जाके मैं एक कॉलम को सेलेक्ट करके उसको स्प्लिट कर सकती हूँ. So this can only be done in the Power Query Editor, not on the Power BI desktop. Power BI desktop पे usually हमारे पास सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी एडिटिंग हो सकती है, फॉर्मेटिंग हो सकती है और डेटा विजुअलाइजेशन हो सकता है. If I am getting your question. Why do we use measure in fact if we have calculated column in Power BI? And what are the differences between them? Which is more powerful? Why do we use measure in fact? Why do we use measures? Measures again we use for the complex calculations. जैसे मैंने दिखाया था कि अगर multiple tables पे हमें कोई भी चीज़ perform करनी होती है तो we create the measures. ठीक है, यहाँ पे हमने एक measure का नया table बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास multiple measures हैं. ठीक है, तो अगेन पावर बीआई को मैं मेजर से कंपेयर नहीं करूंगी. पावर बीआई इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट टूल जिसके अंदर हम मेजर्स क्रिएट करते हैं फॉर आवर बेटर एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन. Acha, what would be the impact of a major upon a structural relational change in underlying table? If I'm getting your question right, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम tables में कोई भी changes कर रहे होते हैं, so how they are going to impact on our visualization, right? What would be the impact of on majors? डेफिनेटली अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर हमारे पास कोई भी अंडरलाइंग टेबल्स चेंज हो रहे होते हैं, सेल्स के डेटा में हम कुछ ऐड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे मेजर्स में भी आ रहा होगा. अगर हमने मेजर्स में उस टेबल को या उस कॉलम को एसोसिएट किया हुआ होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे मेजर्स में भी आ रहा होगा और अंडरलाइंग टेबल्स पे भी आ रहा होगा. Can we get this data for practice? Yes, I can share the data with you. Zunerah, आप वीडियो के कमेंट्स में जाकर ना यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, दे कैन पिक इट फ्रॉम देयर. ठीक है, सही है. Virtual table, I haven't explained it. Virtual table पे basically वर्चुअल टेबल का तो कोई काम नहीं है, मतलब मैंने नहीं किया वर्चुअल टेबल पे कोई काम ऑन द पावर बीआई. ठीक है Zunerah, thank you very much, and that is end of ओके, another wonderful session. इंशाल्लाह फिर कभी टाइम दीजिएगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे पावर बीआई की. श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू ओके, एवरीवन. हैव अ गुड नाइट. अल्लाह हाफिज. आई लव